A very good morning, students. Today I shall teach you second story of this chapter, two stories about flying. The Black Aeroplane by Frederick McCarthy Forsyth. First of all, I'll tell you something about the author of this story. Frederick McCarthy Forsyth was born on August 25, 1938 in Ashford, Kent, England. Is a famous novelist. He was educated at Tonbridge School and later attended the University of Granada in Spain. He joined Royal Air Force. In 1956, he ranked as pilot officer. His notable works are The Day of the Jackal, The Odessa File, The Dogs of War, and The First Feast of God. फ्रेडरिक मैकर्थी फॉर्सिथ का जन्म जो है वो अगस्त 25, 1938 को एशफोर्ड, केंट, इंग्लैंड में हुआ। वो एक फेमस नॉवेलिस्ट थे। उन्होंने एजुकेशन हासिल की टॉनब्रिज स्कूल में और बाद में वो चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेंडा अटेंड करने के लिए स्पेन में। उन्होंने रॉयल एयर फोर्स ज्वाइन की 1956 में और उन्हें पायलट ऑफिसर का रैंक मिला। उनके कुछ जाने माने जो राइटिंग वर्क्स हैं उनमें शामिल है द डे ऑफ द जैकाल, द ओडेसा फाइल, द डॉग्स ऑफ वॉर एंड द फीस्ट ऑफ गॉड। First of all, I'll tell you the theme of the story. This story is based on mysterious elements. Once the narrator was flying his old Dakota aeroplane. Suddenly he was lost in black clouds. He could see nothing except black clouds. He thought that he was going to die. Luckily, another aeroplane guided him to land. He was saved, but after landing, the narrator went to control room to ask who he was. The woman in the control room told him, laughing, that no another aeroplane was there except his aeroplane. ये कहानी जो है वो रहस्यवादी तत्वों पर आधारित है। एक बार जो नैरेटर है वो अपना पुराना डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था, अचानक से वो काले बादलों में गुम हो गया। ठीक है, उसे काले बादलों के अलावा वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा कि वो अब मरने वाला है। लकीली वहाँ पर एक और जो एरोप्लेन था उसने जो एरोप्लेन था उसका धरती पर उतरने में उसकी मदद की, लैंड करने में उसकी हेल्प की और वो बच गया। लेकिन नीचे उतरने के बाद वो जो नैरेटर था वो कंट्रोल रूम में पूछने के लिए गया कि वहाँ पर जो दूसरा एरोप्लेन आया था वो किसका था। जो कंट्रोल रूम में एक लेडी बैठी हुई थी उसने जवाब दिया कि उसके एरोप्लेन के अलावा वहाँ कोई और एरोप्लेन नहीं था। नाउ आई टेल यू द स्टोरी इन डिटेल। Once the night was clear and the narrator was in his old Dakota aeroplane, he was over France and coming back to England. It was 1:30 in the morning. He was thinking about his holidays and wanted to be with his family. Then he made a call to Paris control room and he was told that he should turn 12 degrees west. Then he thought of his English breakfast. It was an easy flight. He was enjoying his flight. Suddenly, he saw black mountains of clouds in front of him. When he observed, Paris was about 150 kilometers behind him. He also noticed that he did not have enough fuel to fly north or southwards. He thought to go back Paris, but he wanted to get his home. So he flew straight in the black clouds. Though it was risky, he could see nothing. He looked at compass and then ratio. Both were dead. Now he was lost in the clouds. He thought that he was going to die. एक बार रात जो थी वो बिल्कुल साफ थी और नैरेटर जो है वो अपने पुराने डेकोटा एरोप्लेन में था। वो फ्रांस के ऊपर था और वापस इंग्लैंड आ रहा था अपने पुराने डेकोटा एरोप्लेन में। सुबह के लगभग 1:30 बजे थे। वो अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था और अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था। तब उसने पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया और उसे बताया गया कि उसे जो है 12 डिग्री पश्चिम की तरफ यानी कि
वेस्ट की तरफ जो है उसको जाना है। तब उसने अपने इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सोचा और ये एक आसान उड़ान थी। वो इस उड़ान को एंजॉय कर रहा था, उसका आनंद ले रहा था। अचानक से उसने जो है अपने सामने काले बादलों का एक पहाड़ देखा। जब उसने यह देखा कि पेरिस जो है अभी 150 किलोमीटर पीछे था, उसने यह भी देखा कि उसके पास सफिशिएंट फ्यूल नहीं है, पर्याप्त ईंधन नहीं था, कि वह जो है अब जब उसने देखा कि उसके पास जो है सफिशिएंट फ्यूल भी नहीं है, और उसने सोचा कि वो वापस पेरिस भी नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन वो अपनी फैमिली के पास अपने घर वापस जाना चाह रहा था। और इसीलिए वो जो था ब्लैक क्लाउड्स की तरफ सीधा उसने उड़ान भरी। वो काफ़ी रिस्की था, उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसने कंपास की तरफ देखा और फिर रेशो देखा, दोनों ही रेड थे कि वो काम नहीं कर रहे थे। अब जो है वो काले बादलों में खो चुका था, वहां पर जो क्लाउड्स आ गए थे उसमें वो खो गया था, और उसने महसूस किया कि शायद अब वो मरने वाला है, ठीक है। But suddenly he saw another aeroplane there. It was a strange black aeroplane, as it did not have light on its wings. He became happy to see that aeroplane. The pilot waved him and asked him to follow. The narrator thought that he wanted to help him. So, like an obedient child, he followed that strange aeroplane. He flew for half an hour, then he became again scared to see that there was not enough fuel to fly. He could fly only for 5 to 10 minutes. Then he began to go down. Suddenly he found himself on the runway. He came out of the black clouds. लेकिन अचानक से उसने वहाँ एक और एरोप्लेन देखा। ये बहुत अजीब सा एरोप्लेन था, ब्लैक कलर का। इसके जो विंग्स थे उनमें कोई लाइट्स नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, और ये जो एरोप्लेन था उसको देखकर जो नरेटर था वो काफ़ी खुश हुआ। पायलट जो था दूसरे एरोप्लेन का, उसने उसे देखकर हाथ से इशारा किया और उसे अपने पीछे आने के लिए कहा। समझ में? जो दूसरा एरोप्लेन वहां पर आया था उसके पायलट ने नरेटर को हाथ से इशारा किया और अपने पीछे आने के लिए कहा। नरेटर ने सोचा कि शायद वो उसकी हेल्प करने के लिए आया है, और इसीलिए एक ओबीडियंट बच्चे की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसने उस अजीब से एरोप्लेन का पीछा किया। वो आधे घंटे तक उड़ा और उसके बाद उसे दोबारा से ये देखकर वो डर गया कि उसके पास उड़ने के लिए सफिशिएंट फ्यूल नहीं था, पर्याप्त ईंधन नहीं था। वो केवल 5 से 10 मिनट तक और उड़ सकता था। तब उसने नीचे उतरना शुरू किया। अचानक से उसने अपने आप को रनवे पर पाया। जब हम लैंड करते हैं, एरोप्लेन जब लैंड होता है तो रनवे पे आ जाता है। अचानक से नरेटर ने अपने आप को रनवे पर पाया और वो काले बादलों से अब बाहर आ चुका था। The narrator looked for the pilot. He wanted to thank him. He went to the control room and asked a woman about that pilot. She looked at him strangely and replied laughingly that no aeroplane was there except his aeroplane. The narrator thought, then who helped him? Who was the pilot in that strange aeroplane? Thus, this story is a mystery. Narrator जो था वो उस पायलट को तलाश करना चाहता है। उसको उसने सर्च ढूंढा नरेटर ने, वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, उसको थैंक्स बोलना चाहता था। वो कंट्रोल रूम में गया और उसने वहाँ पर एक औरत से उस पायलट के बारे में पूछा। उसने उसे हैरानी से देखते हुए, वो जो लेडी वहाँ पर बैठी थी कंट्रोल रूम में, उसने नरेटर को हैरानी से देखा और हंसते हुए जवाब दिया कि उसके एरोप्लेन के अलावा वहाँ पर कोई और एरोप्लेन नहीं था। तब नरेटर ने सोचा कि फिर उसकी हेल्प किसने की। समझ में आया? उस अजीब एरोप्लेन में वो पायलट कौन था? और इस तरह से ये जो कहानी है, ये जो एक इंसिडेंट है, ये एक रहस्यवादी कहानी बनके रह गया। ये क्लियर ही नहीं हुआ कि उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ कौन आया था, वो जो एक स्ट्रेंज एरोप्लेन था और वो पायलट कौन था। दिस इज द स्टोरी। थैंक यू सो मच।